Um, I think, at least for the Indian audience, the next two people coming on to the podium will need no introduction. Suffice it to say that the star attraction for that session here will be the flying Sikh himself, Sardar Milkha Singh, and Rahul will now just bring them forward along with Rakesh ji. Ladies and gentlemen, the flying Sikh himself. किधर राहुल जी आओ राकेश so please ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ प्लीज well here we have Sardar Milkha Singh. Hello. Hello, can you hear me? Yeah. Here we have the legendary Milkha Singh and the maker of the film which both Bhaichan and I have seen, and I'm sure some of you also have seen, Bhaag Milkha Bhaag, one of the best films that I've seen in recent years in India. I won't say very much because I think most of us already know about Milkha Singh. He is the best athlete that India has ever produced. There are some people I know who feel that Gurbachan Singh Randhawa was just as good, if not better, but Milkha Singh is easily the best known athlete in the country. He is the winner of many Asian and Commonwealth Games awards, and he missed winning a medal by a whisker in the Rome Olympics. I happened to be in London at that time. I remember seeing that race on television, and it was just really literally by whisker that he missed the medal. And in Rakesh Mehra's film, there is, I think he's taking a little bit of liberty, but it's a marvelous scene where Milkha Singh looks back, and because of that millisecond or second, he looks back and he loses a few steps. But it's beautifully done, that film. He's looking back because he looked back when he was a child and the partition riots were taking place. He's a real rags to riches story, which is, as I said, being beautifully brought out in Rakesh Mehra's film. I first met Milkha Singh in Chandigarh, but he told me just now, a little earlier, that he's even known my grandfather, Sir Sobha Singh, because when my Bua's husband died, my grandfather came to the Bhog ceremony, and that's where he met him. He doesn't look it, but he's actually 84 years old, much bigger than me. Then, just a few weeks ago, when we were planning this literary festival, Pushpa Singh Literary Festival, some of my friends said, why don't you call, because this after the film had made him into an even bigger figure, why don't you call Milkha Singh? I didn't have his address or anything. Kishi here got hold of his address. I couriered a letter to him, and he graciously agreed to come. And then I was reading one of the columns, I think by Kishwar Desai in the Tribune, and this was only a few days ago, and I saw that Rakesh Mehra, the director of the film, was in Bangalore at another literary festival. So that I was able to get hold of Rakesh Mehra's email through Milkha Singh's manager, who happens to be here, Digraj Singh. He gave me his email, and I wrote to him saying, you're at Bangalore Literary Festival, could you come to our literary festival? And he immediately replied, and here he is also. So that's all I've got to say, and now I will hand it over to Bhaichan Patel, who's a great film buff. He's written a book, actually. Thank you. He's written a book on Bollywood. I know a little about, like he now knows about Rakesh Mehra. Mr. Mehra obviously is a Punjabi, I suppose, but a Delhi boy.
Can you hear me? Yeah? Okay. He's a Delhi boy, studied at the Bal Bharati School on Lodi Road, went to Sri Ram College, which also happens to be my college, I'm very proud to say. And he started in advertising and then went into films. If I'm correct, his first film was with Amitabh Bachchan, Aksh. And then he made a big, huge success, Rang De Basante, which I'm sure everybody has seen. And then he did Delhi 6, which didn't do so well, but did well enough. And of course, Bhaag Milkha Bhaag is his triumph and probably something he'll always be remembered by. He's young enough to make many more films. Yeah, he is young enough to make many more films, and I hope he does. He is really a wonderful. Anybody who's seen Bhaag Milkha Bhaag, Rang De Basante, even Delhi 6 was a very good film, really, except for the monkey business. But we shan't go into that. My first question, let me ask a question to Rakesh. Why did you make a film on an athlete, not on a cricketer, say? Yeah, and athlete is not a big thing among Indians. Why Milkha Singh? Hi everyone, lovely to be in Kasauli and thank you for the introduction. Why a film on Milkha Singh? It's I'll try and answer because at times logic fails you, and so I grew up with the name, with the legend of Milkha Singh. I went into college in 1980. I was a small sportsman of sorts. Used to play cricket and used to swim. Swam for Junior India and all that. And we used to go to National Stadium to practice. It was a second home, and we were always given Milkha Sir as an example. And at times we used to start hating him also. हर बार हमको कराने के लिए इनका नाम ले लेते हैं, मतलब ये करा. But somewhere that went in the subconscious, and it remained. So the partition of India has always troubled me as such. The partition of this land. I've never been able to get my head around it. Whatever I've read, tried to follow it, I've never found an answer for myself. Yes, there are various things, but what always troubled me that the partition of the land, like historical events in the modern world, like the Holocaust or the Second World War, like the apartheid, which went on for 50 years in South Africa, like the Brixton riots or the Rwanda genocide. They always resulted in lost childhoods as such. Mostly the women suffered and the children suffered. But out of that, you find the likedness of Milkha Singh, the idea of Milkha Singh, who emerge and don't let that put you down. And in fact, they go ahead and they become inspirations, not just in their own field, which is athletics. So maybe this is a part of your answer. I was not making a film on an athlete. I was trying to find the Milkha Singh in myself, inside me, and in the process in all of us, the spirit of Milkha Singh as such. Just to make a film on an athlete would have been unidimensional. He's not just an athlete. So if you call him in a party,
he won't come in running and pick up a kebab and exit running. We are very fortunate. Normally we talk about inspirations of figures, of human beings who have a larger than life and they belong to a different time and era. It was once upon a time, there used to be Bhagat Singh, Guru Gobind Singh. We are very fortunate. I was personally very fortunate that I got to meet him, got his blessings to go on this endeavor. And I would never say that I made the film. I think the film made me. And so today I find myself a certain growth, more enriched. I think I've also found an answer to the partition of India in my own weird kind of a way. So yeah, there were so many things. Before going further, Milkha ji would like to say a few words. Hindi, Punjabi, English. नमस्कार, सबको नमस्कार। अगर 2 लफ्ज़ हिंदी में कहूँ तो आप लोगों को इतराज़ तो नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में करीबन मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी हैं और जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया है वहाँ पे हिंदी में ही दिया है, इंग्लिश कभी नहीं दिया। तो दोस्तों, बड़ी हिम्मत है। आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, माइक को आप यूँ पकड़िए। बड़ी हिम्मत है। हेलो, बड़ी हिम्मत है राहुल जी की और मिस्टर पटेल की, जो मिल्खा सिंह को यहाँ ले आए। बात यह है कि जब से मूवी आई है, फिल्म आई है, तब से करीबन कोई 300-400 लेटर रोज का आता है और हर फंक्शन पे मिल्खा सिंह को चाहते हैं। अगर इतनी मशहूरी मिल्खा सिंह की है तो ये बैठे हैं राकेश ओम प्रकाश जी मेहरा, इन्होंने मुझे फॉरएवर जिंदा कर दिया, फॉरएवर अमर कर दिया। तो दोस्तों, आया हूं तो 2-4 लफ्ज़ यहाँ पे कहने पड़ेंगे। मिस्टर राहुल सिंह जी, मिस्टर पटेल जी, मिस्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी और प्यारे दोस्तों, ये मेरी आदत नहीं कि मैं किसी भी फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लंबी स्पीच करूं, पर फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इतनी बड़ी इज्जत दी है, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। अभी राहुल जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। मेरे ख्याल जीवन मिल्खा सिंह का जो है एक खुली किताब है, सब लोग जानते हैं कि मिल्खा सिंह ने क्या किया। मगर राहुल जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 साल हो गए, करीबन 55 या 60 साल के करीब हो गए, मगर 60 साल के अंदर आप 120 करोड़ आबादी में से आज तक एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर। मुझे ये बात करते हुए शर्म आती है। वो ये है कि ज्यादा लंबी स्पीच ना करते हुए एक शेर आपको सुना देता हूं। वो ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ तो ज्योतिषी जो है आपको बड़े से बड़ा इंसान बना देता है, मगर मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। वो शेर सब पे लागू होता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई इंसान है, ये शेर सब पे लागू होता है। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती।
अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म जो है एक उर्दू का लफ्ज है। वो अज़म का मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं जो पढ़े लिखे आदमी का से मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हार्ड वर्क के बगैर, विल पावर के बगैर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकता। आज गली मोहल्ले में कोई किसी को नहीं जानता, दुनिया में नाम पैदा करना यह कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम नहीं कि मिल्खा सिंह मौत से लड़ा। मुझे याद है कि जब 1956 ओलंपिक गेम्स के बाद मैं यहां आया, आपने फिल्म देखी है, सब कुछ देखा है फिल्म के अंदर, तो मैंने धरती माता की कसम खाई इंडिया के अंदर आकर। मैंने कहा कि जब तक मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा, ओलंपिक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। जब मेरा कोच आता था, मुझे याद है नेशनल स्टेडियम के अंदर, दिल्ली के अंदर, 56 की बात आपको बता रहा हूं, उसने प्रोग्राम बना के लाना है कि मिल्खा जी आज आपने 400 मीटर 4 लगानी है और 51 सेकंड वाली एक 400 मीटर लगानी है। उसके बाद आपने चलना नहीं है, जॉगिंग करते हुए एक चक्कर वापस आना है, फिर दूसरी उठा देनी है, फिर तीसरी उठा देनी है। तो जब मैंने तीसरी लगानी तो मैं बेहोश होकर गिर जाया। कहता मिल्खा उठो, मिल्खा उठो, ये जो चौथी लगाओगे यही आपको वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ाएगी। तो मैंने कहा कोच साहब, मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं नहीं भाग सकता। कहता नहीं, आपको भागनी हो। तो दोस्तों, कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, मगर मैंने जो विल पावर थी मेरे अंदर, मैंने कहा नहीं, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ना ही तोड़ना, चाहे कुछ भी। उस जमाने में क्या था? उस जमाने के अंदर लोग सिर्फ क्लैपिंग किया करते, नथिंग। अब आपने मिल्खा सिंह की हिस्ट्री देखी है, सुना है आपने कि मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, 80 में से 77 जीती है। और उसके बाद हिंदुस्तान आने के बाद मुझे किसी ने एक ढेला भी नहीं दिया, एक पैसा मुझे नहीं मिला। ध्यानचंद मेरे साथ थे, सब लोग जानते हैं आप। मेरा नहीं ख्याल कि ध्यानचंद जैसा हॉकी प्लेयर आज तक दुनिया में पैदा हुआ। उसके बाद लाला अमरनाथ जी थे क्रिकेटर, वो भी कैप्टन थे टीम के। हमारे जमाने में हमें एक पैसा भी नहीं, मगर आज आप एक गोल्ड मेडल जीत के आ जाते हो, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। एशिया से ले आओ, मेरे पास एशिया के 6-7 गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, ओलंपिक का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। हमें कुछ नहीं मिला, मगर आजकल सब कुछ है। पैसा, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम ही नहीं करता। मैं कहता हूं जितनी फैसिलिटीज आजकल गवर्नमेंट दे रही है, हमारे जमाने में एक ढेला नहीं था स्पोर्ट्स बजट का। आज करोड़ों का बजट है, 40,000 कोचेज हैं, लेटेस्ट स्टेडियम बन चुके हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास आ गया, किसी चीज की कमी नहीं। अगर कमी है तो हार्ड वर्क की, कमी है तो विल पावर की कमी। तो अगर और मिल्खा सिंह पैदा करना चाहते हैं, मैं हमेशा जहां भी जाता हूं यही कहता हूं कि बच्चों को इतना हार्ड वर्क करना होगा। आज हुसैन बोल्ट का आप नाम सुनते हैं, एक आदमी है दुनिया के अंदर जिसने सारे जमैका का नाम उठा कर रखा, हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट है, किसी चीज की कमी नहीं। मिल्खा सिंह जहां पैदा हुआ है, गुरबचन सिंह रंधावा का नाम इन्होंने लिया है। गुरबचन सिंह रंधावा जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचा 1964 ओलंपिक के अंदर, टोक्यो के अंदर। उसके बाद श्री राम सिंह जी आए, वो फाइनल में पहुंचे 800 मीटर के अंदर। उसके बाद पीटी उषा आई, वो फाइनल में पहुंची। अंजू जॉर्ज फाइनल में पहुंची। तो टैलेंट की कमी नहीं है। आज 6 आदमी हैं जो ओलंपिक
एथलेटिक की बात कर रहा हूं, जो एथलेटिक दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है। बाद में दूसरी गेम्स आती है, एथलेटिक नंबर 1 पे आती है। ठीक है, हमने शूटिंग में मेडल ले लिया है, हमने बॉक्सिंग में मेडल ले लिया है, रेसलिंग में ले लिया है, बैडमिंटन में ले लिया है, टेनिस में ले लिया है, मगर मजा तब है, मैं उस दिन जानूंगा कि जिस दिन हमारा एथलेटिक के अंदर मेडल आए। एथलेटिक में मेडल तभी आएगा बच्चे हार्डवर्क करें, जो कोचेज हैं जिन्होंने काम करवाना है वो हार्डवर्क करें, और जो एसोसिएशन हैं जो 40-40, 50-50 साल से लोग बैठे हुए कुर्सी संभाल के रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा है, वो सिंसियरली काम करें, तब जाके देश का हमारे का मेडल आ सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जहां तक फिल्म का सवाल है, मैं बहुत बधाई देता हूं राकेश मेहरा। मेरे घर पे आए, 1.5 करोड़ रुपया उनको याद होगा। एक डायरेक्टर ने कहा, इनके साथ 2-3 डायरेक्टर और भी आए कि मिल्खा जी हम 50 लाख दे देंगे आपकी स्टोरी, मिल्खा जी हम 1 करोड़ दे देंगे आपकी स्टोरी। किसी ने कहा मैं 1.5 करोड़ भी दे दूंगा, सिफारिश भी कराई किसी ने, मगर ये मेरे बेटे का जीव मिल्खा सिंह का फैसला कि पापा हमने स्टोरी देनी है तो राकेश मेहरा को देनी है। अब आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि मैंने 60 के बाद कोई फिल्म नहीं दी, और मुझे मालूम ही नहीं कि डायरेक्टर कौन अच्छा चल रहा है, एक्टर कौन अच्छा चल रहा है, प्रोड्यूसर कौन अच्छा है, मुझे कोई आइडिया नहीं। मगर मैंने अपने बेटे से पूछा, भाई आप राकेश मेहरा को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? कहता है पापा क्योंकि मेरा बेटा दुनिया में सारी जगह पे गोल्फ खेलता है, और जब शाम को आता है अकेला होता है होटल के ऊपर आके रोज एक हिंदी फिल्म देखता है, और हिंदी फिल्म देखने के बाद कहता है पापा मैंने रंग दे बसंती देखी। अगर स्टोरी देनी है राकेश मेहरा को देनी है, और देनी भी 1 रुपए के अंदर, ये उसका फैसला था। और जो इन्होंने फिल्म बनाई है, आज सारा हिंदुस्तान भाग रहा है, सारा हिंदुस्तान। जहां मैं जाता हूं, बॉम्बे जाऊं, कलकत्ता जाऊं, हैदराबाद जाऊं, जहां भी जाता हूं लोग भागने लगे हुए, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। तो सारी दुनिया को इसने जोड़ा दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि सारी जनरेशन जो है इस मूवी से इंस्पायर हुई। बहुत अच्छी इन्होंने मूवी बनाई है, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। प्रसून जोशी जिसने डायलॉग लिखे हैं, मैंने फिल्म जब पहली बार देखी मैं रो पड़ा। जब मेरी सिस्टर का सीन आया, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रहा था, तो फरहान अख्तर मेरे पास में बैठा था, कहता है अंकल उसने हैंकी निकाला, मुझे दिया, मैंने आंसू पूछे। तो क्या इन्होंने चीज बनाई, आप लोग ये नहीं समझ सकते कि हम लोगों ने जब ये इंडिया और पाकिस्तान बना कितनी तकलीफें होती। जो 60 साल 70 साल के लोग हैं, जिससे नीचे नीचे के लोग हैं, उनको इस चीज के बारे में मालूम नहीं है। जो मेरे एज की उम्र के आदमी हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, उनको मालूम है कि कितने लोग वहां मारे गए, कितने लोग यहां हिंदुस्तान के अंदर मारे गए। बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ, किसी की बहन मारी गई, किसी का भाई मारा गया, किसी के माँ बाप मारे गए। बुरी तरह से लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था और पागल बने हुए थे। मेरे माँ बाप अपने फिल्म के अंदर देखा है कि मेरी आंखों के अंदर सबको मारा। तो दोस्तों, मैं अब ज्यादा लंबी बात करना चाहूं तो शायद 1 घंटा लगा रहा हूं, आप बोर हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। मगर मैं राकेश मेहरा को, इनकी टीम को बधाई देता हूं, स्पेशली जिस लड़के ने, फरहान अख्तर ने जो काम किया है, कमाल कर दिया। सही डुप्लीकेट कॉपी अब मिल्खा सिंह का कोई कह नहीं सकता कि मिल्खा सिंह। उसकी बॉडी देखो, क्या उसने ट्रेनिंग पार्ट दिखवाया है, लोगों को खड़ा कर दिया कि इस तरह से ट्रेनिंग होती है अगर आपने आगे बढ़ना है, मौत के साथ लड़ना पड़ता है। तो मैं राकेश मेहरा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कमाल की फिल्म बनाई है इन्होंने, तो दुनिया को, आने वाली जनरेशन को इन्होंने खड़ा कर दिया। मैं एक बार फिर राहुल जी का, पटेल जी मेरे पास बैठे हैं, इनका, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे और इतनी बड़ी इज्जत दी। जय हिंद। My next question, I'm assuming it really happened. मिल्खा जी, मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँगा। लास्ट रेस्ट आप रूम में दौड़े, आप लाइन के आने पहले मुड़ के देखा,
अगर आप मुड़ते नहीं तो क्या होगा? बात ये है, रोम वाली रेस जो है, जो इन्होंने सवाल किया है, वो मैं समझता हूं कि मरते दम तक मैं नहीं भूल पाऊंगा। एक इंसान का रिकॉर्ड बन जाता है। वो मैंने आपको पहले बताया कि जब दुनिया में मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी तो 77 जीती, तो सब लोगों को यह मालूम था कि रोम ओलंपिक के अंदर 400 मीटर जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। एक रिकॉर्ड बन चुका। अब जो इन्होंने बात कही है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि रेस के अंदर मेरे से गलती हुई, प्लानिंग के अंदर गलती हुई। वो ये कि ये रेस जो है 400 मीटर की, जो रोम ओलंपिक वाली है, ये हिस्ट्री में जाएगी। कि हमारे जमाने में फाइनल 6 आदमी दौड़ा करते थे, आजकल 8 दौड़ते हैं। तो 6 के 6 आदमी ने, 4 आदमी ने पहले ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, और जो 2 पीछे वाले थे, 5th और 6th जो आदमी थे, उन्होंने इक्वल किया रिकॉर्ड। तो ऐसी रेस आज तक दुनिया के अंदर, वो कहते हैं, कभी हुई नहीं कि जहां 6 के 6 आदमी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो मैं इनकी पटेल साहब की जवाब देना चाहूंगा इनकी बात का, कि मेरे से रेस के अंदर गलती हुई। वो ये हुई कि जब स्टार्ट हुई रेस तो मैं लीड कर रहा था रेस को, 250 मीटर तक मैं आगे था सबसे। तो 250 मीटर के ऊपर जाके मेरे दिमाग के अंदर ये बात आई कि मिल्खा, यू रनिंग टू फास्ट, हो सकता है कि आप ये रेस खत्म ना कर पाओ। तो जहां 250 मीटर पे मैं पहुंचा तो वहां पे मैंने अपने आप को ब्रेक लगाया। अब आप एक गाड़ी स्पीड में जा रही है, आप थोड़ी सी ब्रेक दबा दो और जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं वो आगे निकल जाएंगी। तो मैं आपको जस्ट मिसाल दे रहा हूं छोटी सी। तो वो ये हुआ कि वो जो पीछे वाले लड़के मुझे फॉलो कर रहे थे वो उसी स्पीड में चले गए और मेरी स्पीड टूट गई। दोबारा मैंने, जब मैं लास्ट वाला 100 मीटर पे आया तो मैंने कोशिश की पकड़ने की। जिस लड़के को, मेल स्पेंस को मैं बीट करके आया था, हालांकि उसके साथ मेरी फोटो फिनिश हुई, मगर इट वॉज बैड लक। मेरी बैड लक नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान की बैड लक थी, वो मेडल मेरे हाथ से गिर। तो आज तक मेरी यही ख्वाहिश है, आखिर ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो मेडल मेरे से रोम ओलंपिक से में गिर गया हाथ से, वो कोई ना कोई ऐसा नौजवान बच्चा, लड़की या लड़का उठे, ताकि मैं देख के जाऊं वो तिरंगा झंडा वहां पे लहराए और वो मेडल जो है ओलंपिक गेम में। थैंक यू वेरी मच। I'd like to ask Rakesh Mehra his choice of Farhan Akhtar in the role. That is an inspirational choice. How did you choose him? Because he's not a well-known actor till now. How do you choose him? Well, there's normally when you go out casting, I'll just try and explain the process. There are a couple of considerations because films are very expensive commercial medium, so a lot of commercial things creep into your selection of who's going to play what part, and especially if it's the lead role for the film. But here I purely was guided by my instincts. I was guided by the instincts to pick up the story, the subject, the interpretation, and so I went all the way, and I felt that Farhan would do justice to the role. I had known him for a long time, and I had silently watched him, his dedication to his work, whatever he did, and I knew there was this thing inside him, again as an underdog to come out and prove himself and win. And I'm glad I
followed my instincts, and they were right about him. Not just right, he proved them that they were right and a half. Also, it was very important that when you walked into the theatre and you saw Milkha Singh, you should see Milkha Singh. You should not see your favorite familiar face behind him. That's it. So your quick yes, Farhan is very well known, but in a niche kind of a urban way. So these are the factors. Quite a few, but most importantly, instincts. Yeah. Was Akshay Kumar your first choice? No, Akshay Kumar was not my first choice. We did a lot of screen tests for this role. We must have tested 800 Milkha Singhs. Yeah, or not just in India, in London, in Canada, all over the world, in Punjab, and I was finding the fire, but then you would lack the acting talent. I would find the acting talent, you would lack the physicality, and to convert yourself into. After all, you're playing an athlete, so you just cannot look the part. You have to become an athlete also. So that combination, I felt Farhan would deliver. We meet in the club every day for the last 6-7 years. I swim and he goes to the gym, so there was an understanding. Yeah, it was an inspired choice. We don't make films on sport, India. Hollywood makes films on golf, football, baseball. They make they make a lot of films on sport. The only Indian film I can remember or think of on Indian sport is Chak De India, on hockey. So your last film, the one before Milkha Bhag, was not very successful. So were you nervous about making a film on sport? I think I was more nervous catching a flight today morning and coming to Solid in a lit festival. And it's a job and you have to do and put your best foot forward. And it's a job, and I love making movies, so there's no question of fear, I guess. Why do they don't make films on sport? I can't speak for the people. And for myself, what story inspires me, then I go for it. And it's an uphill task. I don't want to go into my sob story. It took us a lot of time and to get the resources together. It was against the current. And but yes, if you have a conviction, slowly and surely you realize that the universe starts conspiring with you. And people, like-minded people, start coming together. I believe the audience has questions to ask. We don't have too much time, so please make your questions very short. Okay, come. मैंने आपके बारे में वहाँ बहुत सुना था, उसमें दो बातें मेन सुनी थी। जो एक तो फिल्म में है कि आप रात को 2:30 बजे उठ के दौड़ते थे, वो फिल्म में दिखाया है। दूसरा मैंने ये सुना था कि आपकी जो फर्स्ट कंपनी रेस हुई थी उसमें आपके बटालियन कमांडर थे कर्नल बलबीर सिंह, उन्होंने आपका टैलेंट स्पॉट किया था। ये क्या सच है? देखो जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज मिल्खा सिंह का नाम या इंडिया का नाम सारी दुनिया में है, तो इसका क्रेडिट जो है वो आर्मी को जाता है। आर्मी जो है उसने ही मिल्खा सिंह को बनाया। और ये जो इन्होंने मेरे से बात पूछी है, ये सही बात है कि इंसान के दिमाग के अंदर पागलपन होना चाहिए। जैसे राकेश मेहरा ने अभी बताया आपको, जब तक पागलपन नहीं है तब तक आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। अब ये जो बात इन्होंने पूछी, ये सही बात है कि मिल्खा सिंह के बाद अगर कोई दूसरा एथलीट अच्छा पैदा किया है इंडिया के अंदर तो वो मक्खन सिंह था।
अब वो बेचारा नहीं है दुनिया के अंदर, मेरे से बहुत जूनियर था। मक्खन सिंह से मुझे डर लगता था। दुनिया में मैं किसी एथलीट से और नहीं डरता, मगर मक्खन सिंह से डरता। डरता इसलिए था कि जब भी इंडिया में या बाहर एशिया में या कहीं भी रेस होनी है वो मेरे कंधों के ऊपर चढ़ के आता है, और मुझे ये डर रहता था कि आज इसने मुझे मारा के मारा, कल इसने मुझे मारा के मारा। तो अगर वो रात को 1 बजे ट्रेनिंग पे जा रहा है तो मैंने रात को 12 बजे उठ जाना है, मैंने चले जाना। अगर 2 बजे गया है तो मैंने 1 बजे चले जाना। तो वो मुझे डर जो था, मैं कहता था परफॉर्मेंस मेरी बनी है तो मक्खन सिंह की वजह से बनी। ये जो आपने चीज पूछी है सही बात है कि इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर भूत आ जाना चाहिए कि मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए ये सारी चीज जो है मैंने आपको बताई। आप पाकिस्तान लोग पढ़िए खुशवंत सिंह, मैंने आपको बोला है कि भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ। खुशवंत सिंह जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पूरे दिल से, आपसे नहीं। ये तो मेरे ख्याल राहुल जी तो काफी देर के बाद पैदा हुए होंगे, मैं तो उनको बहुत देर से जानता हूँ, सदियों से जानता हूँ, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो मैंने आपको शेर सुनाया था, वो उसी में आते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं खुशवंत सिंह जी उसमें आते हैं। राइटर, बेस्ट राइटर। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और पूछिए क्या पूछना। ये बड़ी खुशी हुई सी फिल्म ताकि देखी, बहुत जबरदस्त फिल्म सी। मैं पूछना चाहती सा कि वो वाकई उसी तरह होया सी जदों तुसी वापस नहीं जाना चाहते सो, क्योंकि ताकि उत्थे जाहिर है कि सारी फैमिली मैसेकर हुई सी ते हुण जे सी तानू बुलाइए ते आओगे? देखो जी, इन्होंने बड़ी पुरानी चीज याद करवाती है, फिल्म में भी है। वैसे एक पाकिस्तान का रनर होना सी अब्दुल खालिक, वो मिल्खा सिंह तो पहला एशियन गेम के जीत चुके, और वो जड़ियां 1956 ओलंपिक गेम्स हुई मेलबर्न आस्ट्रेलिया के उथे 100 मीटर के सैमीफाइनल आया हुआ। बहुत अच्छा रनर प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने, और ओदी मेरी मुलाकात 58 दे विच हुई टोक्यो एशियन गेम। तो उथे मेरे कोच ने इंट्रोड्यूस कराया वो कोच के नाल कि जी मिल्खा सिंह है इंडिया तो नवा मुंडा निकलिया, तो ये अब्दुल खालिक नाल 200 मीटर दौड़े। तो उन्हें टाउंडिंग वे दे नाल किया, उन्हें कहा अच्छा जी, अरे हमने बहुत ऐसे देखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो उतों चला गया तो जब 200 मीटर 100 मीटर वो जित गया सी और 400 मीटर मैं जित गया सी। हुण 200 मीटर के मुकाबला सी, जिहड़ा 200 मीटर जितदा सी वो ही एशिया का बेस्ट एथलीट बनता सी। होया ये कि जिसने 200 मीटर की रेस शुरू हुई तो यह फोटो फिनिश लाइन ये उत्ते मेरा जिहड़ा ये राइट लैग वाला मसल से पुल हो गया, तो मेरी लैफ्ट लत्त दे जाके राइट लैग वजी, तो मैं इस तरह टेप के उत्ते गिर रहा तो वह खड़ोता हो बराबर टाइमिंग, मगर 2 घंटे लग गए फोटो आने दे। वो फोटो आई, फोटो तो उन्होंने देखिया कि किहड़ा आदमी फर्स्ट हैगा, तो उन्होंने मिल्खा सिंह इंडिया को फर्स्ट किया 200 मीटर। वो होया ये कि भी पाकिस्तान वाले कहने लगे कि भी ये तो मिल्खा सिंह का फ्लूक ना। उन्होंने जी मैं उतो इनविटेशन भेजा 1960 के भी मिल्खा सिंह दौड़न लई पाकिस्तान दे विच आ। जब वो इनविटेशन आया तो वो गल तो दिल तो कितने भुल सकती, जो चीज़ां मेरे नाल हुईयां पाकिस्तान दे विच तो भुलिया नहीं जा सकता कभी, मगर मैं पाकिस्तान जाने को इनकार कर। वो पंडित जी मेरे इन्ने क्लोज आ गए सी जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जितया, तो पंडित जी को पता लगा भी पेपर पढ़े, उन्होंने अखबार पढ़िया, वो कहने लगे मिल्खा सिंह ने ना करती जान। मैनू हाले तक याद है कि उन्होंने धर्मवीरा सैकटरी होंगे सी और धर्मवीरा गवर्नर रहे ने साढ़े पंजाब। उन्होंने मैं टेलीफोन आया कि मिल्खा जी पंडित जी ने याद किया जाए।
ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ मिल सकता। वो होया है कि पंडित जी ने मैंने बुलाया, मिल्खा जी मैंने पढ़ा है अखबार में आपकी, आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्या बात? मैंने कहा पंडित जी जो हुआ है आपको मालूम है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मेरा जी नहीं करता। नहीं आपने जाना ही, पड़ोसी देश है, खेलें जो है वो प्यार से खाती है, आपको जाना। उन्होंने लफ्ज मैं नहीं डाल सकता। नेक्स्ट डे मैं न्यूज देखती कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। जब वाघा बॉर्डर पे गया, बड़ी इज्जत की थी, नौ लगन बड़ी इज्जत की थी, जीप फुलाना सजाई हुई सी, बस साड़ी जब उत्थे पहुंची सारी टीम बस में बैठी रही, उन्होंने कहा जी मिल्खा सिंह नूं थले लाओ। मैनू लाया, जीप विच बिठाया। जीप जिहड़ी सी वो जिहड़ा डिस्टेंस हैगा लाहौर तक का मेरे ख्याल है 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस, और दोवां पासे तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे लैके सारी दुनिया, बच्चे खड़ोते सी पहले, पिछे पिछे लोग खड़ोते सी, वो इस तरह लहराते गए। तो मैं लाहौर पहुंचे, बड़ी इज्जत मान दिता उन्होंने। तो उत्थे जाके मैं एक उर्दू का पेपर पिया सी फ्लैटी होटल उठाया उन्होंने। उस पेपर दे विच, उर्दू पेपर दे विच तुसीं हैरान होगे की लिखिया है सी। पहले उत्ते लिखिया है अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, ये लफ्ज उन्होंने यूज किए फ्रंट पे। फिर वो बच्चे सारे टीम कहने लगी भी चलो इतने फूड स्ट्रीट हैगी, उत्थे जाके खाना खा के आइए। रस्ते च गए तो बैनर भी वही लगे, जो पेपर ही लिखा सी वही बैनर उत्थे लाए उन्होंने सारी स्ट्रीट दे। चलो जब असी स्टेडियम पहुंचे नैक्सट डे, तुहानूं मैं गल सुनाना चाहना, बड़ा मैनूं फील होया और बड़ा ही महसूस किया उस गल में कि जब मेरी और अब्दुल खालिक की रेस शुरू होने लगी 200 मीटर की, तो 3 मौलवी जनाब उसको उतर के आए, पौड़ियों तो उतर के आए। 60,000 आदमी बैठा सी, और जिहदे 10,000 औरत जो पेपर वाले दसदे ने बुरके वाली बैठी। वो होया है जी कि मौलवी 3 उतर के आए, माला हाथ फड़ी हुई आए, तो अब्दुल खालिक मेरे नाल खड़ोता है, कहते खुदा हाफिज, खुदा आपको दुश्मनों से फतेह। जिसने उन्हें लफ्ज यूज किए थे मैं कोल खड़ोता सी, मैंने कहा मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे। अच्छा खुदा आपको भी ताकत, जो शर्मिंदा हो गया थोड़ा। तो वो जी जब रेस शुरू होने लगी तो स्टेडियम के ऐ जिदा कि चिड़ी भी नहीं बैठी, सन्नाटा छाया था। हुण मिल्खा सिंह का 2 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया। वो जिसले रेस शुरू हुई तो जनरल अयूब उत्थे बैठे थे, उन्होंने सामने की रेस गुजरी, तो मैं तो अब्दुल खालिक को बीट किया ही किया, मगर पिछों मक्खन सिंह ने बीट कर मक्खन सिंह बीट कर गया और 3rd नंबर पर गया, तो बेचारा गिर गया, जाकर रोना शुरू करता। मैं उन्होंने उठाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने मैं थापी थूपी दी। फिर मैंने कहने लगे जी स्टेडियम का एक चक्कर लाओ, मैं स्टेडियम का चक्कर लाया, और अखबार वाले ने लिखा कि जिसने उस 10,000 औरत के सामने दी मिल्खा सिंह गुजरिया, तो औरतों ने बुरके चुक के देखा कि ये सिंह है जिन्हें आके साढ़े आठ मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रेस जिसले खत्म हुई, मैं चक्कर ला के जब वापस आया, तो फिर जनरल अयूब ने आके मेडल पाना सी मेरे गले के, बड़ी ठेठ पंजाबी मैनू कहने ने मिल्खा सिंह जी तुसी पाकिस्तान आके दौड़े नहीं, आके उड़े, पाकिस्तान को फ्लाइंग सिख का खिताब देंगे। और जड़ा और मैं तुम ये दसना चाहना कि अज अगर मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के, तो वह क्रेडिट पाकिस्तान में जाता है, वह क्रेडिट जनरल अयूब नहीं जाता। थैंक यू राकेश मेहरा, थैंक यू मिल्खा सिंह जी, एंड नाउ आई थिंक
मुजफ्फर